Okay, today we will start the first lecture of one shot series, that is Introduction to Trigonometry. Introduction to Trigonometry, the first lecture of one shot series. Today we will introduce a one shot series of class 10th maths. The first lecture is, and the first chapter is Introduction to Trigonometry. First of all, we talk about the syllabus of trigonometry, topics to be covered, in trigonometry. That is first, trigonometric second one is trigonometric ratios of specific angles. Third one is trigonometric identities. Clear? These are the three topics which we cover in Introduction to Trigonometry. The first topic is trigonometric ratios. What is trigonometric ratios? The second one is trigonometric ratios of some specific angles. Some specific angles means 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. And the last one is trigonometric identities, means sin square theta plus cos square theta is equal to 1, and 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. The last one is 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. Clear? Now पहले बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है क्या एक्चुअली? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर हम बात करेंगे 10th लेवल की, we study at 10th level, we study only for right angle triangles. At 10th level we study only for a right angle triangle. At 10th level we study only for right angle triangle. Clear? This is first point. At 10th level we study only for right angle triangle. Now the second point is, जो हमें एंगल डिस्कस करना है ट्रिग्नोमेट्री में, द एंगल डिस्कस्ड in other words we can say represented by, for example, angle A, angle P, angle X, alpha, beta, gamma, theta, delta, zeta, psi, etc. or 0 is lesser equal to angle lesser equal to 90 degree. These are mostly acute. यह हमें एक्यूट एंगलों के लिए पढ़ना है. क्लियर? जो हम एंगल रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल ए, एंगल पी, एंगल एक्स, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, साई, जीटा एटसेट्रा. क्लियर? अब हम बात करेंगे, यहाँ तक समझ आया? क्लियर? मेनली जो हमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री में, किन एंगलों के मुतलिक हमें पढ़ना है, किन एंगलों के बारे में मुझे पढ़ना है? एक्यूट एंगल. क्लियर? सर ये हमने क्यों लिखा इक्वल टू? क्लियर? लेटर ऑन वी विल डिस्कस इट. ओके, अब देखो, अगर हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट की, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है क्या एक्चुअली? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज द ओनली कंसेप्ट इन मैथ्स.
is the only concept in maths. Trigonometry is the only concept in maths that connects sides and angles both. क्या मैंने लिखा? Yes, trigonometry is the only concept in maths that connects sides and angles both. Clear? Trigonometry एक ऐसा कंसेप्ट है मैथ्स में जो हमें कनेक्ट करता है किस के साथ? साइड्स एंड एंगल्स. क्लियर? उसके बाद द फोर्थ पॉइंट इज एज द नेम सजेस्टेड. सर अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है क्या एक्चुअली. एज द नेम सजेस्टेड, एज द नेम सजेस्ट्स, as the name suggested, trigonometric ratio in short form, trigonometric ratio, that is T ratio, is the ratio of sides of a right angle triangle. Stand up you. दोनों खड़े हो जाओ. Trigonometry, as the name suggested, trigonometric ratio, T ratio is the ratio of sides of a right angled triangle. ये जो trigonometric ratio है, simply that is T ratio, it is the ratio of what? Sides of right angled triangle. Clear? Now अब हम देखेंगे, अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे, सपोज मैंने यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल सपोज ड्रा किया है. दिस इज suppose this is A here and suppose this is B and this one is C. Clear? Suppose the value of this is A units here and the value of this CB is B units here. The value of this C units here. Clear? यहाँ तक समझ आया? हाँ, अब देखो ये समझ आया क्या लिखा मैंने. As the name suggested, ये जो trigonometric ratio है, it is a ratio of the sides of a right angled triangle. ये है क्या एक्चुअली? अब देखो, अगर हम A की बात करेंगे, सपोज मैंने एक वैल्यू सिलेक्ट किया, दैट इज A. द वैल्यू ऑफ A इज द साइड ऑफ AB. क्लियर? अगर हम A की बात करेंगे, सर A ऐसा भी आएगा, A इसके साथ भी रेशियो बनाएगा B के साथ फर्स्ट. सर ए सी के साथ भी बनाएगा. क्लियर? और कोई पॉसिबिलिटी है ए के साथ? कुछ नहीं. आप देखो बी को बी ए के साथ बनाएगा, बी सी के साथ बनाएगा. इज इट क्लियर? और कोई पॉसिबिलिटी है बी को? आप देखो सी, पॉसिबिलिटी ऑफ ए, पॉसिबिलिटी ऑफ बी. यहाँ तक समझ आया? और कोई पॉसिबिलिटी है? सर अगर हम ये काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, कोई इट मीन्स दैट सर 6 possibilities. It means that 6 trigonometric ratios. This simply ratio. A divided B is what? Simply ratio. A divided by C is simply ratio. That means and so on, C divided by B is simply ratio. Is it clear? अब देखो, since 6 possibilities, hence 6 T ratios. यहां तक समझ आया? 6 T ratios. क्लियर? उसके बाद अब हम बात करेंगे
अब हम बात करेंगे टी रैशियोज और यूनिटलेस। ये है क्या एक्चुअली? यूनिटलेस। इसका कोई यूनिट नहीं होता है। क्लियर? क्यों? अगर हम इसकी बात करेंगे, इसका भी यूनिट है, इसका भी यूनिट है, यूनिट विल गो। क्लियर? दैट इज व्हाई वी राइट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर यूनिटलेस। यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक समझ आया? कोई कंफ्यूजन? उसके बाद अगर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे, द साइड्स वी कॉल्ड perpendicular, that is simply P, base, that is simply B, and hypotenuse, that is simply H. Clear? उसके बाद H is fixed, P and B depends on the selection of theta. क्लियर? समझ आया? अब हम बात करेंगे, सपोज मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल प्लॉट किया, सपोज दिस इज ए हेयर, सपोज मैंने मान लिया दिस इज बी हेयर, सपोज दिस इज सी हेयर। आप देखो क्या करना है। एच इज फिक्स्ड, क्या बोला मैंने? द साइड्स आर कॉल्ड, जो राइट एंगल ट्रायंगल में साइड्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? द साइड्स आर कॉल्ड परपेंडिकुलर एक साइड को, दैट इज पी। क्लियर? बेस, दैट इज बी, हाइपोटेन्यूज, दैट इज एच। एच इज फिक्स्ड। जो हमें खेलना है ट्रिग्नोमेट्री में, वो हमें खेलना है किन एंगलों के साथ? एक्यूट एंगलों के साथ। क्लियर? एच इज फिक्स्ड। पी एंड बी डिपेंड्स ऑन द सिलेक्शन ऑफ थीटा। P एंड B जो वैरी होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द थीटा। फॉर एग्जाम्पल, अगर थीटा यहाँ होगा, सपोज 90 डिग्री के जो साइड अपोजिट होता है, दैट इज हाइपोटेन्यूज, दैट इज एच। इज इट क्लियर? यहाँ तक समझ आया? उसके बाद AB रिप्रेजेंट्स व्हाट? AB रिप्रेजेंट्स, दैट इज, दिस इज सिंपली एच, दिस सिंपली एच। क्लियर? अब हम बात करेंगे, चाहे एक्यूट एंगल यहां होगा, एच यही होगा। इज इट क्लियर? हाँ। एंड हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड इन राइट एंगल ट्रायंगल। इज इट क्लियर? सपोज मैंने मान लिया, सपोज एक्यूट एंगल यहां होगा, यहां भी होगा, सपोज मैंने मान लिया ए पे होगा। क्लियर? बी एंड पी परपेंडिकुलर एंड बेस डिपेंड्स ऑन द सिलेक्शन ऑफ थीटा। कहने का मतलब है ये है, मैंने कहां पे रखा है थीटा, मैंने कहां पे सिलेक्ट किया है एक्यूट एंगल, यहां पे। सपोज मैंने अभी मान लिया मैंने यहां पे सिलेक्ट किया है ए पे। क्लियर? दिस थीटा के अपोजिट, एक्यूट एंगल के अपोजिट, 90 डिग्री के अपोजिट नहीं है, 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड आता है वो आता है हाइपोटेन्यूज। But base and perpendicular depends upon the acute angle. Clear? Theta के opposite, that means acute angle के opposite. It means that target angle के opposite. Suppose this is target angle here. Target angle. Clear? Target angle. Target angle के opposite जो side होता है that is perpendicular. जो तीसरा side बच गया that is simply B. यहाँ तक समझ आया? कोई confusion? वही लिखा मैंने, द साइड्स आर कॉल्ड परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज, एच इज फिक्स्ड, पी एंड बी डिपेंड्स ऑन द सिलेक्शन ऑफ थीटा। इज इट क्लियर? दैट मीन्स थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर एंड बी। क्लियर? अब अगर थीटा यहाँ होगा, हाइपोटेन्यूज क्या होगा? यही है, नो चेंज इन हाइपोटेन्यूज बिकॉज एच इज फिक्स्ड। क्लियर? अगर थीटा सी पे होगा, दैट मीन्स अगर एक्यूट एंगल सी पे होगा, क्लियर, थीटा के अपोजिट, दैट मीन्स AB represents perpendicular and the third side represents base. This side always represents hypotenuse. यहाँ तक समझ आया? कोई confusion?
अब देखो, अब उसके बाद देखो, सपोज साइन ऑफ थीटा, read as sin of theta as, yes, sin of angle theta, not sin into theta. This is wrong. ये समझा, this is correct. Is it clear? Is it clear? उसके बाद suppose this first point here, suppose second point की अगर हम बात करेंगे, suppose मैंने मान लिया साइन ऑफ थीटा का होल क्यूब, अगर पावर्स की बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, साइन ऑफ थीटा का होल क्यूब, साइन ऑफ थीटा का, दिस इज रीड एज साइन क्यूब, यहां पे मैंने क्या बोला, साइन ऑफ थीटा का होल क्यूब, यहां पे क्या बोलना है, साइन क्यूब थीटा। क्लियर, समझ आया यहां तक? सपोज उसके बाद मैंने मान लिया कॉस ऑफ सपोज थीटा होल पावर 5, कॉस ऑफ थीटा होल पावर 5 क्या आएगा, कॉस ऑफ होल पावर 5 थीटा। क्लियर? इन जनरल वी कैन से, इन जनरल हम यहाँ पे लिखूंगा, इन जनरल यहाँ से यहाँ तक जाना है। क्लियर? इन जनरल साइन ऑफ थीटा होल पावर m मैंने मान लिया इज इक्वल किसके बराबर आएगा, साइन ऑफ m थीटा। दिस इज हाउ पावर्स आर टैकल्ड, दिस इज हाउ पावर्स आर टैकल्ड। यहां तक समझ आया? ये समझ आया? कोई कंफ्यूजन? हाँ, कोई कंफ्यूजन? ओके, दे दो टेस्टर। अब देखो, अब हम बात करेंगे सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, सीकेंट, okay, this is cos,
अब देखो, दिस इज हियर P divided by H, clear? B divided by H, P divided by B, this is the reciprocal of this. अगर बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे साइन रेसिप्रोकल होता है कोसेक, एंड कोसेक इज अ रेसिप्रोकल ऑफ साइन. दैट मीन्स साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं. दैट इज वाई वी राइट दिस एरोज, यहाँ से. इज इट क्लियर? हाँ, कॉस is a reciprocal of what? Sec, and sec is a reciprocal of what? Cos. Tan is a reciprocal of what? Cot. Cot is a reciprocal of what? Tan. यहाँ तक समझ आया? ये समझ आया क्या लिखा मैंने? इसको अंडरलाइन करो. क्लियर? एंड कोसेक, अगर साइन इज ए रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक, कैन आई राइट दिस? एच डिवाइडेड बाय बी. यहाँ तक समझ आया? कोई कन्फ्यूजन? हाँ. अब मैंने क्या बोला? ट्रिक. देखो क्या करना है, हाँ, उसमें स्पीकर दे दो. ले लो जिगर. देखो, पढ़ो. The first letter of this, that is P. The first letter of that is P. The first letter of this, that is P. That is H. That is H. That is B. Clear? P divided by H represents what? Sin. Okay. Cos this tan. यहाँ तक समझ आया? हाँ. अब देखो, उसके बाद the second important point is formula. देखो क्या है. सपोज मैंने मान लिया अभी एंगल दैट इज थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ 1/2 कोसेक थीटा. इज इट क्लियर? बी पार्ट मैंने क्या लिखा? कोसेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ 1/2 साइन थीटा. सी पार्ट इज व्हाट? कॉस थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ 1/2 सेक थीटा. सेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ 1/2 कॉस थीटा. उसके बाद tan थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ 1/2 cot थीटा. cot थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट? tan थीटा. क्लियर? अब देखो, अगर sin थीटा रेसिप्रोकल है कोसेक थीटा, cos जो रेसिप्रोकल होता है दैट इज सेक थीटा, tan जो रेसिप्रोकल होता है दैट इज cot थीटा. अगर हम इन रेसिप्रोकलों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमें एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट देता है दैट इज 1. क्लियर? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा. कोसेक थीटा इसको मल्टीपल होगा साइन थीटा को, दैट इज 1. इज इट क्लियर? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये, चाहे साइन थीटा फर्स्ट होगा या सेकंड होगा, कोसेक थीटा फर्स्ट होगा सेकंड, तब भी ये 1 आएगा. इज इट क्लियर? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1. सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज आखिर 1. उसके बाद tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1. कॉट थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू 1. ये समझ आया? ये?
आप देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फॉर similar triangles the value of t ratios will be same। देखो क्या है, ये वही कंसेप्ट है, एंगल ए एंगल बी दिस। अब देखो मगर इस केस में जो हमें राइट एंगल ट्रायंगल लेना है वो हमें 2 लेना है। इस केस में जो हमें राइट एंगल ट्रायंगल लेना है वो हमें 2 लेना है। क्लियर, एक ही ट्रायंगल नहीं लेना है। क्लियर, अब देखो दिस इज योर फर्स्ट ट्रायंगल, दैट मीन्स सपोज मैंने मान लिया उसको मैंने नाम रखा है एज इट इज, दैट मीन्स ए बी सी। जो एक्यूट एंगल पॉसिबल होगा इस राइट एंगल ट्रायंगल में, दैट मीन्स ए बी सी में, दैट मीन्स द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्यूट एंगल in triangle ABC is that is angle A and angle C। is it clear? अब देखो सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड ट्रायंगल क्या है, सपोज मैंने वो मान लिया दिस इज योर P एंड दिस योर Q एंड दिस योर R। in this right angle triangle, that means right angle triangle PQR, the possibility of acute angle is angle P and angle R। is it clear? is it clear? अब देखो सपोज ये हमें ये बोल रहा है, ये रिमार्क फॉर सिमिलर ट्रायंगल्स द टी रेशियो विल बी सेम, द टी रेशियो विल बी सेम। फॉर एग्जांपल हमें प्रूव करना है एंगल पी किसके बराबर है, एंगल ए। हमें एक्यूट एंगल आपस में बराबर करना है। क्लियर, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी या एंगल आर इज इक्वल टू एंगल सी। क्लियर, ओके सपोज मैंने मान लिया सपोज दिस इज 10, दिस इज 5, सपोज दिस इज 6, दिस इज 3, दिस इज 8, दिस इज 4। यहाँ तक समझ आया? अब हमें सिमिलर करना है, मुझे क्राइटेरिया यूज़ करना है। क्लियर, आप देखो क्या करना है। अगर पी आर की बात करेंगे, पी आर को करस्पॉन्डिंग क्या आएगा उस ट्रायंगल में, दैट इज ए सी। इज इट क्लियर? दैट मीन्स 10 डिवाइड बाई, मैं खाली लॉजिक लिखूंगा। क्लियर, 10 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू व्हाट, 2 डिवाइड बाई 1। इज इट क्लियर? या 5 1 ज़र 5 2 ज़र। इज इट क्लियर? द सेकंड पॉइंट इज अगर पी क्यू की बात करेंगे, अगर पी क्यू को क्या करस्पॉन्ड आएगा, ए बी, दैट मीन्स व्हाट 6 डिवाइड बाई 3, इट मीन्स दैट 2 डिवाइड बाई 1। यहाँ तक समझ आया? 8 डिवाइड बाई 4, दैट मीन्स अगेन 2 डिवाइड बाई 1। नाउ अब हम बात करेंगे सर 3 रेशियोज आपस में इक्वल आया, मगर जो रेशियो है ये साइड्स का रेशियो है। क्लियर, दिस साइड दिस साइड दिस साइड, दैट मीन्स देयरफॉर by triple S similarity criterion what, yes, triangle नए ABC नहीं लिखना है, पहले मुझे लिखना है PQR। क्लियर, यहाँ तक समझ आया क्यों लिखना है? हाँ, PQR दैट मीन्स इज 10 है, ये 10 वैल्यू किस ट्रायंगल का है, PR। दैट मीन्स इज इट क्लियर? आप देखो दैट मीन ट्रायंगल PQR सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। क्लियर, वो आपको पता है पोजीशनिंग किस तरीके से करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। क्लियर, अब देखो अब हमें निकालना है दिस साइन ए इज इक्वल टू, दैट मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू दिस एंगल P। क्लियर, बाय CPST एंगल P इज इक्वल टू एंगल ए। हम अभी 1 पॉइंट ही फॉर्म यूज करेंगे। Clear, there is no possibility on this become the two angles, must possibility must itan PS must possibility ake possibility cha, that is why we write we can use only 1 point form in that case। this is here angle Q is what, angle B, angle R is what, angle C। यहाँ तक समझ आया? कोई confusion? हाँ, अब देखो उसके बाद क्या करना है। क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है अगर हमारे पास दो एक्यूट एंगल मगर वो जो 2 एक्यूट एंगल है, एक एक्यूट एंगल एक ट्रायंगल का होगा, एक एक्यूट एंगल दूसरे ट्रायंगल का होगा। क्लियर, समझ आए? जस्ट लाइक दिस एंगल P इज द एक्यूट ऑफ दिस एक्यूट एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल
एंगल ए इज द एक्यूट एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल। इस केस में, इस रिमार्क में, इन क्वेश्चनों में हमें दो ट्रायंगल सिलेक्ट करना है, क्लियर, बट द बोथ टू ट्रायंगल्स मस्ट बी राइट एंगल ट्रायंगल, क्लियर। अब देखो, एंगल ए इज द एक्यूट एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल, एंगल ए angle P is the acute angle of this triangle, angle A is the acute angle of this triangle, angle Q is the acute angle of this triangle, angle B is the acute angle of this triangle, angle R is the acute angle of this triangle, clear, समझ आया यहां तक। अब देखो क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है, अगर दो एक्यूट एंगल आपस में बराबर होंगे, जो दो एक्यूट एंगल होगा, अगर हम उन दो एक्यूट एंगलों को कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मल्टीपल करेंगे, वो भी आपस में इक्वल होंगे, क्लियर। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात करेंगे, सर सपोज इफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल, इफ एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ए, देन साइन ऑफ एंगल पी इज अगेन इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ए। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। उसके बाद अगर ये वाइस वर्सा भी है, अगर ये होगा तब ये होगा, अगर ये होगा तब ये होगा। इज इट क्लियर। क्या बोला मैंने, इफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एट दैट टाइम साइन ऑफ एंगल पी इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ए। ये जरूरी नहीं है साइन, कॉस भी होगा, टैन भी होगा, कॉट भी होगा, कोसेक सेक। इज इट क्लियर। सपोज अगर ये होगा तब ये होगा, अगर ये होगा तब ये होगा। इज इट क्लियर। उसके बाद अगर हम इसकी बात करेंगे, सपोज इफ angle Q is equal to angle P, at that time we can write, suppose मैंने मान लिया अभी, suppose cos of angle Q is equal to what, cos of what, angle P। अगर cos of angle Q is equal to angle B, then angle Q is equal to angle B, but angle Q and angle B are acute angles। ये जो angles होगा this and this and this must be acute angle। ये समझ आया, ये समझ आया। इज इट क्लियर। अगर हम इसकी बात करेंगे, अगर हम इसकी बात करेंगे एंगल दिस, इफ एंगल आर इज इक्वल टू एंगल सी, देन सपोज मैंने मान लिया कोसेक एंगल आर इज इक्वल टू व्हाट, कोसेक एंगल सी। इफ कोसेक एंगल आर इज इक्वल टू कोसेक, क्लियर, दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक। Yes, simply we can write, yes, simply we can write sin of this again represents angle, clear। तब ये नहीं लिखना है, तब ये नहीं लिखना है, clear। This also represents angle। समझ है इवन, हाँ, युस्ते कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस बिथकन ऐसा ना, always can represent angle। तेरे शुरू मैंने नहीं था करना angle जरूरी क्या, मैं करना ही था angle पे, समझ है इवन तो भी किस वना, हाँ। अच्छा, ये समझ आया, ये समझ आया, हाँ। अब निकालो एक्सरसाइज, निकालो एक्सरसाइज। निकालो एक्सरसाइज। बोलो, अब देखो एक्सरसाइज 8.1 पेज नंबर 121 पेज नंबर एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमें ये क्या बोल रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी, एबी इसको 24 सेंटीमीटर, बीसी इसको 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन, मुझे निकालना है व्हाट। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1, आपको क्या लिखना है कॉपी पे, गिवन ए बी इजको 24 सेंटीमीटर, बी सी इजको 7 सेंटीमीटर, क्लियर। उसके बाद क्या लिखना है, वो हैव टू फाइंड, वो हैव टू, पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे,
क्लियर। क्वेश्चन में ये बोल रहा है इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC बट राइट एंगल एट B, दिस B, सपोज मैंने मान लिया दिस A, दिस इज C, क्लियर। AB is equal 24 centimeter, this is 24 centimeter, BC is what? Okay, this is what? Is it clear? यहाँ तक समझ आया? हाँ नहीं, क्या करना है आपको? पहले आपको क्या करना है? पहले आपको क्या करना है? क्वेश्चन ने हमें प्रोवाइड किया है दो साइड्स का वैल्यू, क्लियर, AB एंड BC। मुझे निकालना है जब भी हमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन सॉल्व करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंप्लीट ऑल द थ्री साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, क्लियर। पहले मुझे निकालना है सभी साइड्स का वैल्यू राइट एंगल ट्रायंगल का, उसके बाद हम क्वेश्चन पे अटैक करेंगे। इज इट क्लियर? अच्छा, जो मैंने लिखा है अभी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना, साइन P डिवाइड B, उसको पहले लिखना है फर्स्ट वी डिसाइड टारगेट एंगल एंड देन वी वर्क, क्लियर। मैंने यहाँ पे लिखा है साइन ऑफ P डिवाइड बाई B, उसको लिखना है पहले फर्स्ट वी डिसाइड टारगेट एंगल एंड देन वी वर्क, क्लियर। टेबल के ऊपर फर्स्ट वी डिसाइड टारगेट एंगल एंड देन वी वर्क, उसके बाद टेबल बनाए, बस दैट इज इट, एज इट इज लिखना है, क्लियर। अच्छा, मूव ऑन दिस क्वेश्चन। क्या बोला मैंने? जब भी हमें कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है ट्रिग्नोमेट्री में, पहले हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। उस राइट एंगल ट्रायंगल में हमें ये देखना है क्वेश्चन ने हमें किस किस साइड का वैल्यू प्रोवाइड किया, किस साइड का मुझे वैल्यू निकालना है। अगर क्वेश्चन ने हमें दो साइड्स का वैल्यू प्रोवाइड किया, दो साइड्स, बट द टू साइड्स मस्ट बी राइट एंगल ट्रायंगल, वो तो जरूरी होगा, क्लियर। सर क्वेश्चन ने हमें दो साइड्स को वैल्यू प्रोवाइड किया, दैट मीन्स AB इज 24 सेंटीमीटर एंड BC इज 7 सेंटीमीटर। बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट? AC, क्लियर। पहले हमें निकालना है वैल्यू ऑफ AC विद द हेल्प ऑफ व्हाट? पाइथागोरस थ्योरम। क्या लिखना है आपको? गिवन AB इज 24 सेंटीमीटर, जब आपको प्रेजेंट क्वेश्चन करना है, गिवन AB इज 24 सेंटीमीटर, BC इज 7 सेंटीमीटर, we have to find AC, therefore by PGT, by Pythagoras theorem, पूरा लिखना है आपको पाइथागोरस थ्योरम, ये नहीं लिखना है PGT, एग्जाम में ये नहीं लिखना है PGT, पूरा लिखना है सुपरलिंग बाय पाइथागोरस, PYTHO एंड सो ऑन, क्लियर, पूरा लिखना है बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो रहा है, सर कौन परपेंडिकुलर होगा, कौन बेस होगा, कौन हाइपोटेन्यूज होगा? इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। क्वेश्चन ने हमें क्या बोला, मुझे क्या निकालना है, इट डिपेंड्स अपॉन दैट, क्लियर। आप देखो, उसके बाद पहले मुझे निकालना है वैल्यू ऑफ AC विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, मैं अभी निकालूंगा विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरन ट्रिपलेट, क्लियर। आप देखो क्या करना है, 24 का स्क्वायर दैट मीन्स 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49, 576 प्लस 49 दैट मीन्स 625, स्क्वायर रूट विल गो दैट मीन्स 25, क्लियर। ये समझ आया, ये समझ आया क्या करना है। उसके बाद क्या करना है, दैट इज फर्स्ट पार्ट, दैट इज फर्स्ट पार्ट। उसके बाद नीचे लिखना है बाय पाइथागोरस थ्योरम, AC आपको आ गया 25 सेंटीमीटर, उसको अंडरला करना है, बस दैट इज इट, क्लियर। उसके बाद नाउ मूव टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट फर्स्ट, साइन ऑफ A, कॉस ऑफ A, एंड सेकंड पार्ट मुझे निकालना है साइन ऑफ C, कॉस ऑफ C। लुक हियर, क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड साइन A। मुझे किसको देखना है? राइट एंगल ट्रायंगल को। जब भी हमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, मुझे पहले कंप्लीट करना है राइट एंगल ट्रायंगल, उसके बाद मुझे देखना है राइट एंगल ट्रायंगल को। कहां देखना है, क्यों देखना है? इट डिपेंड्स अपॉन द एंगल। हम ट्रिग्नोमेट्री में एक्यूट एंगल के साथ खेलेंगे, दैट मीन्स जो एंगल होगा इस राइट एंगल ट्रायंगल में, वो कहां होगा? एंगल A पे, बिकॉज साइन A, इट रिप्रेजेंट साइन A। कहने का मतलब है साइन ऑफ एंगल, एक्यूट एंगल, क्लियर। दैट मीन्स एक्यूट एंगल इस कहाँ होगा, दैट इज A पे, क्लियर।
अगर हम बात करेंगे दिस इज ए, इसके अपोजिट दैट इज परपेंडिकुलर हियर एंड दिस इज बेस एंड दिस वन इज एच। ये समझ आया, ये समझ आया, क्लियर। क्या लिखना है आपको, सॉल्यूशन। पार्ट फर्स्ट, साइन ऑफ ए, शाबाश, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। क्या करना है आपको, साइन ऑफ ए आपने मेंशन किया है फार्मूला, आपने मेंशन किया है फार्मूला। उसके बाद क्या करना है, बैक आना है क्वेश्चन पे, एंगल पे बैक आना है। एंगल किस पे है, ए पे। इस ए के सिलेक्शन पे, दैट मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन ए के अपोजिट परपेंडिकुलर क्या होगा, दैट मीन्स ए बी, दैट मीन बी सी, दैट मीन्स 7, मैं डायरेक्टली मेंशन करूंगा, क्लियर। एंड हाइपोटेन्यूज दैट मीन्स 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर विल गो, दैट इज दिस। ये कैंसिल नहीं होगा, ये कैंसिल नहीं होगा, क्लियर। 7 डिवाइड बाई 25 एज इट इज रहेगा। इज इट क्लियर, द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ ए इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 25। देयरफॉर लिखना है साइन ऑफ ए इज व्हाट, 7 डिवाइड बाई 25, ये अंडरलाइन करना है, बट दैट इज दिस इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ साइन ऑफ ए। नाउ मूव टू दिस कॉस ऑफ ए। कॉस ऑफ ए क्या फार्मूला है, बेस डिवाइड बाई यस हाइपोटेन्यूज। उसके बाद क्या करना है, एंगल पे आना है। किस पे है एंगल, ए। एंगल ए के हिसाब से कौन बेस होगा, ये होगा, यस, हाइपोटेन्यूज कैंसिल नहीं होगा, ये होगा कॉस। नाउ साइन सी क्या फार्मूला लिखना है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। यहां तक समझ आया क्या करना है। उसके बाद क्या करना है, एंगल पे आना है। किस पे एंगल है, सी पे। इस सी एंगल के हिसाब से कौन परपेंडिकुलर होगा, ए बी, दैट मीन 24। इस एंगल सी के हिसाब से हाइपोटेन्यूज कौन होगा, नो चेंज इन हाइपोटेन्यूज, क्लियर, दैट मीन 25। कैंसिल होगा, नहीं होगा। एंड द सेकेंड वन इज cos c। फार्मूला क्या लिखनी है, यस, बेस डिवाइड बाई, उसके बाद क्या करना है, एंगल पे आना है वापस, दैट मीन सी। मुझे क्या लिखूँ मैं, बी, दैट मीन हाइपोटेन्यूज। मुझे बी जरूरत, बी की जरूरत है हाइपोटेन्यूज। एंगल सी हिसाब क्या में जरूरत, बेस, दैट मीन बेस। एंगल सी दैट इज बेस, इज परपेंडिकुलर, दैट मीन दैट इज बेस। 7 डिवाइड बाई व्हाट, कैंसिल होगा, नहीं होगा, अंडरलाइन करो, बस दैट इज इट। दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस कॉस ऑफ सी। अब देखो, अगर एंगल की बात करेंगे ए एंड सी, ये एक ही ट्रायंगल का एक्यूट एंगल है, क्लियर। ए भी इसी ट्रायंगल का एक्यूट एंगल है, सी भी इसी ट्रायंगल का एक्यूट एंगल है। उस वक्त आपको क्या याद रखना है, ध्यान से देखना क्या करना है। साइन ए का वैल्यू क्या आया, क्या आया, 7 डिवाइड बाई 25। अब देखो, अगर साइन ए का वैल्यू आया 7 डिवाइड बाई 25, अगर हम सी की बात करेंगे, cos ऑफ सी का वैल्यू क्या आएगा, 7 डिवाइड बाई 25, क्लियर। अगर साइन ऑफ, सपोज cos ऑफ ए का वैल्यू क्या आया, 24 डिवाइड बाई, अगर हम सी की बात करेंगे, साइन ऑफ सी, मुझे क्या करना है, मुझे क्या देखना है, अगर ये साइनोस बेकुस रेशो कॉस एंगल, मगर एंगल से गई आसन, एंगल गई आसन अके राइट एंगल ट्रायंगल अके, समझ तम साथ गई पॉसिबल, तम साथ गई फ्रेम आउट, समझ ट्रिक थो याद। योर अगर योर साइन, यह साइन एज पर वैल्यू, हो ब्या रेशो कुछ क्वेश्चन कॉस, तमिक तक एंगल आसन डिफरेंट, आपको एंगल गोस आसन क्या, ठीक है, सुने तथ वैल्यू, दैट मीन मे जी वैल्यू कड़, बाकी से पाने, दैट इज इट। समझ आया, क्लियर। आपको एक निकालना है साइन, एक निकालना है सी का, ए का सी का, चाहे तो एक वैल्यू कड़ी तो सी वैल्यू कड़ी ना, बस बाकी से पाने। यहाँ तक समझ आया, कोई कन्फ्यूजन। नाउ मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्या करना है, फाइंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 2, सपोज मैंने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा किया है, एज पर क्वेश्चन दिस इज क्यू, दिस इज पी,
and PQ is what? 12 centimeter. This is what? 13 centimeter. ये क्या आएगा? देखो क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है? फाइंड tan P माइनस, देखो क्या करना है, tan P, ये भी इसी राइट एंगल ट्रायंगल का इक्विट एंगल है और ये भी इसी राइट एंगल ट्रायंगल का इक्विट एंगल है। आप देखो पहले मुझे क्या करना है, कंप्लीट करना है राइट एंगल ट्रायंगल क्यों आर विद हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। मैं अभी पाइथागोरस थ्योरम नहीं यूज करूंगा, मैं अभी यूज करूंगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। 13 7, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, 169 माइनस 144 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25 दैट इज 5। ये समझा, ये समझा। अब देखो tan ऑफ P मुझे निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, tan ऑफ P एज इट इज लिखना है। tan का फॉर्मूला क्या आएगा, यस परपेंडिकुलर जोड़े बेस। अब देखो अब मुझे देखना है, बैक आना है एंगल पे। किस पे एंगल है, P पे। सर ये एक्यूट एंगल एज पर दिस मुझे सिलेक्शन करना है, इसके अपोजिट मुझे परपेंडिकुलर चाहिए और बेस चाहिए। इसके अपोजिट दैट मीन्स पी आर दैट इज 5, बेस दैट इज 12। यहां तक समझ जाए। उसके बाद काट आर, बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, काट आर के हिसाब से, यही फॉर्मूला है ना काट को। उसके बाद वापस आना है एंगल पे, आर पे एक्यूट एंगल है, उसके अपोजिट मुझे परपेंडिकुलर है, वो मुझे नीचे लिखना है, दैट मीन्स 12 एज पर दिस, बेस यस 5। इज इट क्लियर। ये देखो tan ऑफ P का वैल्यू क्या आया, काट ऑफ R क्या वैल्यू है, यहां तक समझ आया, क्लियर। अब देखो देयरफॉर tan ऑफ P माइनस काट ऑफ R 5 डिवाइड बाई, दिस इज द आंसर। ये समझ आया। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखो क्या करना है क्वेश्चन नंबर थर्ड को। इफ मुझे कैलकुलेट करना है, फाइंड मुझे निकालना है, फाइंड यस cos A एंड। अब देखो क्या करना है, अब क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन ने हमें डायरेक्टली रेशियो दिया है साइन ऑफ ए का, क्वेश्चन ने हमें डायरेक्टली रेशियो दिया है साइन ऑफ ए का, या ऐसा भी होगा या ऐसा भी होगा, साइन ऑफ ए डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 4, या ऐसा भी होगा 4 साइन ऑफ ए माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तब यही आएगा, है ना, क्लियर। या ऐसा भी होगा 4 साइन ऑफ ए इज इक्वल टू 3, तब भी यही आएगा। कहने का मतलब ये है, यम साथ इस क्वेश्चन ऐसे ये कड़ी दिवन ऐसे डायरेक्टली रेशियो, उनकी डायरेक्टली रेशियो बनाए शुना बनाए बगर कोण राइट एंगल ट्रायंगल अपडेट करब राइट एंगल ट्रायंगल कोण अपडेट पदम योड एस मुझे इक्विट एंगल, अगर साइन एस मुझे फार्मूला परपेंडिकुलर डिवाइड बाय व्हाट, हाइपोटेन्यूज इस परपेंडिकुलर वैल्यू इस हाइपोटेन्यूज वैल्यू, ठीक है। अब देखो सर ये क्वेश्चन करें थे, क्वेश्चन चीज करें थे। अब देखो ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 या आप देखो ना पहले 8, यह क्वेश्चन करें थे छाया पैटर्न पे तम साथ क्या करूँ इस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो तक कुछ जिनिस थम अके साइड थवन यह गो ना योर काट ऑफ ए इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड 15। ये समझ आया लॉजिक मैंने क्या बोला, क्लियर। क्वेश्चन चूंकि डायरेक्टली प्रोवाइड करूँ यह क्वेश्चन करें थे, ये इक्वेशन फॉर्म थे, समझ आया। अब देखो क्या करना है इन क्वेश्चन में, हमें क्या करना है, देखो क्या करना है। साइन ऑफ ए इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड 4, मुझे निकालना है कॉस ऑफ ए एंड tan ऑफ ए। पहले मुझे राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट करना है, क्लियर। देखो सपोज मैंने मान लिया ये राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल किस पे है, ए पे, को दैट मीन्स ए यहां नहीं होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां नहीं होगा। इज इट क्लियर, बिकॉज ऑफ दिस। ये समझ आया, ये समझ आया। अब देखो सपोज मैंने मान लिया दिस ए, दिस इज बी एंड दिस सी। इज इट क्लियर। अब देखो उसके बाद क्या करना है, सोल्यूशन में क्या करना है, साइन ऑफ ए क्या फार्मूला क्या आएगी, इज इट क्लियर। बट साइन ऑफ ए इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड 4, इज इट क्लियर। देयरफॉर ये भी साइन का वैल्यू, ये भी साइन का वैल्यू है, कंपेयर दैट मीन्स। अब देखो
क्या बी का वैल्यू डायरेक्ट आएगा 3? नहीं, उसको पहले इक्वी मल्टीपल करना है, इक्वी मल्टीपल। कहने का मतलब ये है रेशियो वह परपेंडिकुलर पे 3 कम राव 4 कम राव जरूरी इक्वी मल्टीपल न्यूमरेटर्स कर मल्टीपल रेशियोस मज सह कर डिनोमिनेटर। समझ आया? तो दैट मीन्स सपोज देयरफॉर मैंने मान लिया p इज इक्वल टू 3x एंड h इज इक्वल टू 4x। यह लास्ट x x गसन कैंसल। क्लियर? दैट इज परपेंडिकुलर इस एंगल a के हिसाब से। दिस इज परपेंडिकुलर, इसका वैल्यू क्या आया 3x। ओके, एंड हाइपोटेन्यूज 4x। ये समझ आया? ये समझ आया? अब मुझे क्या निकालना है? ये निकालना है पाइथागोरन ट्रिपलेट, पाइथागोरस थ्योरम। किसको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है? वंकस इक्वी मल्टीपल ये क्वेश्चन है इक्वी मल्टीपल एक्स वंकस पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें क्या? ठीक है, याद देखिए तो कर ठीक है। शॉर्ट तरीके क्या हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ये ना 14x का स्क्वायर ये ना सॉरी 16x का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर क्या आएगा 5। दिस बिकम्स 5x। ये समझ आया? ये पाइथागोरन ट्रिपलेट 3 4 5 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 minus 9 is what? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 7 नहीं आएगा। 7 कहाँ आएगा? ये देखो ना साइन ऑफ ए दैट इज 3 डिवाइड 4। साइन का फार्मूला क्या है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। क्लियर? दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज है ना। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 4 का स्क्वायर इज इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस दिस 16 माइनस 9 7। चलो छोड़ो। हाँ, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 4 का स्क्वायर ये देखो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस सपोज मैंने मान लिया 16 क्लियर? 16 माइनस 9 इज व्हाट? हाँ, चलो √7x। क्लियर? अब देखो क्या करना है। दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू दिस। ठीक, ए बी इज इक्वल टू, अब राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट होगा। अब राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट होगा। उसके बाद क्या करना है? देखो क्या करना है। अब मुझे निकालना है कास का वैल्यू। अब मुझे निकालना है कास ऑफ ए का वैल्यू। कास ऑफ ए का वैल्यू क्या आएगा? यस, कास ऑफ ए का वैल्यू क्या आएगा? पहले मुझे फार्मूला लिखनी है। दैट मीन्स 9 बी डिवाइड बाई एच। उसके बाद क्या करना है? बैक आना है एंगल पे। एंगल कहाँ पे होगा? ए पे होगा। इस ए के हिसाब से मुझे बेस चाहिए और हाइपोटेन्यूज चाहिए। बेस क्या है? √7x है ना, एंड दिस इज 3x। दिस विल गो, वी गेट √7 डिवाइड बाई 3। मुझे लग रहा है ये गलत वैल्यू निकल रहा है। उसके बाद 10 क्या आंसर है इसका? हाँ, क्या है? यही है, यही है। अब देखो tan ऑफ ए का फार्मूला क्या है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाँ यस 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 यस। ओके, देखो परपेंडिकुलर इज व्हाट? क्या होगा परपेंडिकुलर? 3x डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज क्या होगा? 4x। ये विल गो, दिस विल 4। समझ आया? समझ आया? कोई कंफ्यूजन? कंफ्यूजन है कोई? कंफ्यूजन कहाँ है? यस 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 यस, बेस बेस बेस।
ये समझ आया? समझ आया? इज इट क्लियर? हाँ, अब ये आएगा क्वेश्चन नंबर 4, 15 काट है इसको 8, ये आएगा sec 13 is equal to 13 divided by 12, मुझे सब निकालना है। पहले मुझे राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट करना है, क्लियर? इक्विमल्टीपल साथ रखना है इसको, क्लियर? सेक का रेसिप्रोकल क्या आएगा? cos, अगर sec थीटा इज 13 डिवाइड बाय 12, cos क्या आएगा? 12 डिवाइड बाय आएगा ये, ओके। ये आएगा क्वेश्चन नंबर 6, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल साइड दैट cos A is equal to cos B, देन शो दैट एंगल A is equal to एंगल B। ये आएगा, अभी मैंने दिखाया ना, क्या शो करूँ? A to B, राइट एंगल ट्रायंगल से नहीं, हमें A स्पीड एक्यूट एंगल, हमें B स्पीड एक्यूट एंगल, बदल का नाम, ठीक है? सिमिलरिटी करें ताकि हम एंगल A is equal to एंगल B। अगर नहीं आएगा मैं दिखाऊंगा। समझ आवा? अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 आएगा, cot of theta is equal to 7 divided by 8। पहले मुझे कंप्लीट करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, राइट एंगल ट्रायंगल, क्लियर? उसके बाद साइन का वैल्यू पुट करना है, cos का वैल्यू पुट करना है, सॉल्व दिस वी कैन गेट, क्लियर? उसका आंसर आएगा 49 डिवाइड बाई 64, दैट मीन 7 का स्क्वायर डिवाइड बाई 8 का स्क्वायर, क्लियर? ये भी आएगा आपको 3 cot of A is equal to what? 4। इसको क्या करना है? cot of A is equal to what? 4 डिवाइड बाई 3, ट्रिग्नोमेट्रिक, पहले मुझे राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट करना है, क्लियर? क्या आएगा रेशियो? 3 4 एंड 3, दैट मीन पाइथागोरन ट्रिपलेट, क्लियर? दैट इज 5, क्लियर? सॉल्व करना है। उसके बाद क्या करना है? राइट एंगल ट्रायंगल, ये मैं खुद दिखाऊंगा कल इंशाल्लाह, क्वेश्चन नंबर 9, अगर वो नहीं आएगा तो मैं दिखाऊंगा, ओके। अब आपको क्या करना है? आपको टेलीग्राम ग्रुप चैनल ज्वाइन करना है, वहाँ पे मैं प्रोवाइड नोट्स करूँगा इस लेक्चर का, क्लियर? ये मैं अभी अपलोड करूँगा ये लेक्चर। जो उसका नाम है ना, उसका भी नाम है मैथ्स बाय जहांगीर सर, ठीक है? वो ज्वाइन करना।